Okay, so firstly, a very pleasant good morning to one and all present over here, respected Director Sir, Principal Sir, Milan Sir, teachers, and my fellow friends. I am Ms. Bansi Gagatra from Green Valley International School from Standard 11th Commerce English Medium. Standing as a host, would like to welcome you all for today's debate competition. So, I am very glad that today we are all here together for a healthy debate competition. So, topic for today's debate is time versus money. We chose this topic because time and money both plays important role in our life. Okay, now I would like to explain that what exactly a debate means. A debate is a discussion or structured contest about an issue or a resolution. A formal debate involves two sides, one supporting a resolution and one opposing it. Such a debate is bound by rules previously agreed upon. Debates may be judged in order to declare a winning side. Debates in one form or another are commonly used in democratic societies to explore and resolve issues and problems. Decisions at a board meeting, public hearing, legislative assembly, or local organization are often reached through discussion and debate. Indeed, any discussion of a resolution is a form of debate which may or may not follow formal rules. In the context of a classroom, the topic for debate will be guided by the knowledge, skill, and value outcomes in the curriculum. And now I would like to keep some rules in front of both the teams. Firstly, the limit must be kept in mind by each member while defining their views. No one is allowed to use double meaning words or abuse it. No one is allowed to interrupt to anyone while defining their views. You will be allowed to speak when one is finished with his or her point. So now here we start our debate competition, time versus money. Starting with the first round. In first round, two members from team time will be getting chance to speak first and two members from team money will be replying it. Okay? So now I would like to hand over mic to Mehak. हेलो एवरीवन, टाइम इज़ मनी. आप सभी ने अपनी लाइफ में ये लाइन कभी ना कभी सुनी होगी या कभी ना कभी बोली भी होगी. बट टुडे आई वांट टू क्लियर वन थिंग दैट टाइम विल नेवर टर्न इनटू मनी. बट इफ़ यू हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स then definitely you turn your time into money. भिखारी के पास टाइम तो बहुत होता है लेकिन फिर भी वह गरीब क्यों होता है? Because he does not has time management skills. Time management is a process of planning and organizing how to divide your time between different activities. PM श्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की वजह से. रतन टाटा, मुकेश अंबानी और लिस्ट बहुत लंबी है. इन सभी ने अपनी लाइफ में सही टाइम पर डिसीजंस लिए हैं. अपॉर्चुनिटीज़ सभी को मिलती है लेकिन जो समय पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता है वही दुनिया में नाम कमा लेता है. एन इंच ऑफ टाइम इज़ एन इंच ऑफ गोल्ड बट यू कांट बाय एन इंच ऑफ टाइम विथ एन इंच ऑफ गोल्ड. इसका मतलब है अच्छा समय सोने जैसा होता है. कई सारी असफलताओं के बाद अच्छा समय आता है. जैसे सोने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है वैसे वक्त की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है. सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. थैंक यू. So according to Mehak, time management is most powerful source for our success, right? So now who will like to reply, Mehak? I'm interested. Okay, so here I am handing over mic to Priya. Okay, I think that as you said that time is everything, but I don't think that time is everything because जब आदमी के पास पैसा होता है तो अच्छों का टाइम चेंज हो जाता है. जैसे कि लाइफ एग्जांपल है हर्षद मेहता. उन्होंने शेयर्स खरीदे शेयर मार्केट में से और मार्केट सिक्योरिटीज़ में से फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन उनको जब उनकी प्राइस इंसेंटली बढ़ जाती है तब उनको सेल करते हैं और ऐसे वो स्टॉक मार्केटर फेमस बन गए. और उनका एक फेमस डायलॉग है कि जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसकी कुंडली में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और आपने जैसे कि बोला कि टाइम इज़ एवरीथिंग, तो आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू नीड टू मैनेज योर टाइम? Yes, of course, to getting success. Oh yeah, exactly, to getting success. But what are the indicators of, according to my point of view, the indicators of time is money management. And thank you.
तो प्रिया का मानना है कि पैसा जेब में हो तो कुंडली में राहु हो या शनि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर माइक टू जेंसी. I think time is more important than money. It is valuable and precious. Like जैसे कि खर्च किया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं. It means time is irreversible. Once it's spent, never buy back. जैसे कि गुजरा हुआ बचपन, जा चुकी जवानी और हाथ से निकले हुए मौके. Okay, so Jency is saying that time is irreversible, which make it valuable. Okay, so team money, who's gonna reply to Jency? Okay, so here I hand over mic to Parmin. My dear friend Jansi, I don't agree with your dominant view in the favor of time, because you said that time is irreversible, which means it is precious and more valuable than money. But I think it's not a plus point of time, it's a negative side of time. क्योंकि टाइम के बारे में एक फेमस डायलॉग है, अपना टाइम आएगा, लेकिन टाइम आता है. बट मनी के लिए ऐसा कोई थॉट नहीं बना, क्योंकि पैसे आते नहीं है, उसे कमाया जाता है मेहनत से. और जो चीज़ मेहनत से हासिल की हो, उस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और वही चीज़ हमें मोटिवेट भी करती है. और वैसे भी आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के लिए धन को बुरे दौर का सबसे अच्छा मित्र बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति धन का सम्मान और संरक्षण करता है, वही व्यक्ति आगे चलकर धनवान बनता है. इसीलिए बुरे समय में हमें यही सबसे ज़्यादा काम आता है. इसीलिए हमें धन का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. So according to Parmi, money acts as a motivator in our life. So everyone here, our first round is ended, and now we are coming up with the second round. So in second round, 2 members from team money will be getting chance to speak first, and 2 members from team time will be replying it. Here we start. I would like to hand over mic to Pankti. बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. पैसा हो तो दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लोगों का टाइम भी. बड़ी बड़ी कंपनीज में लेट नाइट तक जॉब करने वाले एम्प्लॉय से पूछ लेना, क्या मंडे टू सैटरडे उनका है? नहीं, मंडे टू सैटरडे उनके बॉस ने उनसे खरीदा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू मी, मनी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. So according to Pankti, सब कुछ बिकता है, हर किसी की कोई कीमत होती है, right? Okay. So team time, who will reply it? Okay, so here I hand over mic to Jairaj. पंक्ति, you are saying that if we have money then we can buy anything in the world. तो फिर दुनिया के सभी अमीर इंसानों को कोई दुख होगा. आपकी फैमिली को आपका पैसा नहीं, आपका टाइम चाहिए. हेल्दी रिलेशन पैसे से नहीं बनते, रिश्तों को टाइम देना पड़ता है, तभी वो लंबे समय तक टिक पाते हैं. अगर आपके पास पैसा होता, पैसे से सब खरीद सकते हैं, तो यहाँ बैठी सभी ऑडियंस के पास 6 एप्स होते. अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ टाइम मांगती है. तो मेरा यह मानना है कि कुछ रिश्ते इसलिए टिक आप इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि आप उन्हें टाइम देते हैं, जैसे कि दोस्ती. थैंक यू. So here according to Jairaj, रिश्ते हो, कोई इन्वेंशन हो या हेल्थ हो, ये सब आपसे टाइम मांगते हैं. रिश्तों को और हेल्थ को मेंटेन रखना है तो इन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, राइट? ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर माइक टू रिष्टि. जैसे हम सब जानते हैं कि हर कोई किसी ना किसी की पोल खोल रहा है, बट हर कोई एक दूसरों को एक्सपोज कर रहा है. बट यू नो वन थिंग अबाउट मनी, मनी इज द बिगेस्ट एक्सपोजर इन द वर्ल्ड. पैसा हर किसी की रियलिटी को सामने ला सकता है. जैसे रिश्तेदारों से पैसे मांगो, रिश्तेदारों की रियलिटी सामने आ जाएगी. सो रिलेटिव एक्सपोज. दोस्त से पैसे मांगो, पता पड़ता है कौन दोस्त सच्चा और कौन सिर्फ नाम का. और ईमानदारी या बेईमानी चेक करनी हो तो रिश्वत दो, रिश्वत ले ली तो बेईमान, न दी तो ईमानदार. सो आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ मनी. थैंक यू. ठीक है, तो वृष्टि का कहना है कि मनी इज द बिगेस्ट एक्सपोजर इन द वर्ल्ड. अच्छा, सो हु विल रिप्लाई टू वृष्टि? ओके, सो हियर आई हैंड ओवर माइक टू नैंसी. My dear friend Vristi,
कब तक ये एक्सपोज खेलते रहोगे? पैसे से लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ इनफ टू एक्सपोज देम। ज़िंदगी सिर्फ दूसरों को एक्सपोज करने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हमें कुछ सिखाती भी है। अगर कुछ सीखना है तो समय से सीखो। हाँ, समय सबका गुरु है। इंसान को जो समय सिखा सकता है वो दुनिया की कोई स्कूल या किताब नहीं सिखा सकती। बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाता है और यह भी बताता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। समय हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में दोबारा गलतियां ना करें जिसकी वजह से खराब समय आया था। इस तरह से समय हमें अच्छे बुरे का ज्ञान बताता है। थैंक यू। तो नैन्सी का कहना है कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो हमें अच्छे और बुरे की समझ देता है, कठिन समय में धैर्य रखना सिखाता है। So now I would like to raise 2 questions for both the teams and as well as audience too. So my first question is that अगर आपके सामने भगवान आए और मीन्स आपको 2 ऑफर दे, ठीक है, उसमें से फर्स्ट ऑफर आपका ये रहेगा कि आपको 100 years विदाउट मनी और 20 years with lots of money. So what you will choose? So first I would like to keep this question in front of both the teams. So who is gonna reply? Please raise your hand. Okay, so here I hand over mic to Bhavishya. मैं 100 साल लूँगा, क्योंकि जैसे कि हमें टाइम से सुख मिलता है, आनंद मिलता है और मनी से सुख मिलता है। जैसे कि आप बुद्धा ही देख लो, वो उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो सुख से आनंद से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए मैं पैसे कभी भी कमाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं 100 साल में कितने भी 1-2 साल तो ऐसे आएगी जिसमें हम मनी कमा सकते हैं। तो मैं 100 साल लूँगा। Okay, thank you. Anyone from this team? Yes, so here I hand over mic to Kishan. I would like to choose 20 years and money, क्योंकि हम हमारे ड्रीम्स मनी से चूज ले सकते हैं। जब में मनी हम कुछ भी कर सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। टाइम से कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। Okay, thank you. Anyone from the audience would like to answer? Please raise your hand. No one? Okay, so here comes my second question. How can we be successful by utilizing the time in right way or by utilizing the money in right way? So who is going to answer first? Okay, so here I hand over mic to Kinari. हम मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं राइट वे में। जब हमारे पास मनी हो तब हम सोशल वर्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्कर्स को हम जॉब दिला सकते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बिल्ड करके। वैसा सब टाइम को मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। थैंक यू। Okay, too good. Anyone from team time? Okay, so here we have come to an end for our debate competition. So what we have learned is that time and money are both equivalent values. They both are important in our life. They both play an important role. So time is also important and money is also important. And not taking much time, I would like to thank you all for giving your precious time to us and for being a part of this. Thank you. हेलो एवरीवन। तो यहाँ आपने देखा टाइम और मनी दोनों की इम्पोर्टेंस आपने समझी। बीता और समय वापस नहीं आता, पैसा हम खर्च करने के बाद कमा भी सकते हैं। तो टीम टाइम एंड टीम मनी ने दोनों ने जो है कहते हैं टाइम एंड मनी की अपने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंस बताई है। ओके, आपका लव और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि जो हमारी टीम है वो इससे भी अच्छी डिबेट्स आगे परफॉर्म करती रहे। थैंक यू।